10,000 کا جو لوگ جمع ہونے تھے اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں علیمہ خان صاحبہ، ذرا سنیے گا جی۔ جی یہ ریکویسٹ تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، اچکزئی صاحب نے دی تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ٹائم فریم ہو جائے، تو اس کے اندر انہوں نے اشور کیا تھا اچکزئی صاحب کو کہ 10,000 لوگ ہم لا سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اچکزئی صاحب نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ ٹائم فریم دے دیں، تو اچکزئی صاحب نے کہا اگر آپ 2 سے 6 کر لیں تو پھر وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے، جو لیڈرز ہیں مجھے نہیں پتا کون، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر 10,000 لوگ یہاں لے کر آئیں گے۔ تو پھر ہم نے اگری کر لیا، ہم نے کہا صرف یہ کہ 2 سے 6 کی بجائے اب 3 سے 7 کر لیں، کیونکہ گرمی بھی گزر جائے گی، تو ہم نے پھر 3 سے 7 اگری کیا تھا۔ تو آج امید ہے اسٹرینتھ پوری ہو جائے گی آج؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا، یہ تو پی ٹی آئی کی کال، مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ان کی تو جناب یہ تھا 10,000، لیکن آج جو ہے وہ نہیں آ سکے۔ خود محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ بھی نہیں آئے، اور بیرسٹر گوہر سے جب پوچھا گیا کہ آج اچکزئی صاحب نہیں آئے تو کہاں ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ کوئٹہ گئے ہوئے ہیں، اور کوئی ایشو ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، ان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے، پرسنل نجی دورہ ہے، یہ ابھی نہیں بتا سکے کیونکہ بجٹ سیشن چل رہا ہے اور لیڈر آف اپوزیشن کا وہاں پہ ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے جی یہ بھی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملات جو ہیں چل رہے ہیں۔ اب 10,000 کا جو لوگ تھے وہ نہیں آ سکے، اور اس پہ بیرسٹر گوہر نے بھی اس بارے میں گفتگو کی ہے، وہ بھی آپ کو سنوائیں گے۔ علیمہ خان صاحبہ، ایک اور آج کام ہوا جی، ایک اور بھی معاملہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جو سب سے بڑا ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں تھا، مقدمہ تھا علیمہ خان صاحبہ کا، اور اس میں آج ایک فہرست پیش کی گئی ہے گواہوں کی۔ 26 نومبر کے حوالے سے مقدمہ تھا، اس میں گواہوں کی فہرست پیش کی گئی ہے، اور اس میں اینکرز کو بلایا گیا ہے، اور اینکرز کے ساتھ ٹی وی کے نیوز ایڈیٹر، نیوز بیورو چیفز کو بلایا گیا ہے بطور گواہ، اخبارات کے نیوز ایڈیٹرز کو بلایا گیا ہے۔ یہ ایک پوری لمبی فہرست ہے، کیونکہ 2024 میں جب یہ ہوا تھا 26 نومبر کا معاملہ، اس وقت کون کون بیورو چیف تھے، اس میں اے آر وائی کو، جیو کو، دنیا کو، ان سب کے بیورو چیفز کو بلایا گیا ہے بطور گواہ کہ آئیں عدالت میں آ کے اسٹیٹمنٹ دیں، اور اس بارے میں پھر اخبارات کے ایڈیٹرز کو بھی گواہوں کی فہرست میں علیمہ خان صاحبہ نے ڈالا ہے کہ ان کو بھی بلایا جائے، محسن نقوی کو بلایا جائے، عطا تارڑ کو بلایا جائے، عظمیٰ بخاری کو بلایا جائے، یعنی کہ وفاق کے اور صوبائی وزراء، ان کو بھی بلایا جائے اور آ کے گواہی دیں۔ تو ذرا سنائیے گا جی، یہ نمبر 3 سارٹس جو ہے یہ سنائیے گا۔ حق کے دفاع میں اور فریق بنا لیا آپ نے، یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ اپلیکیشن، یہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ جی بتائیں۔ دیکھیں یہ اپلیکیشن ہے فار سمننگ آف کورٹ وٹنسز۔ آپ دیکھیے اس کیس میں الزام کیا ہے علیمہ خان صاحبہ پہ۔ ٹھیک ہے۔ اس کیس میں جو ایف آئی آر ہے، اگر آپ اس ایف آئی آر کو دیکھیں تو اس لائن میں لکھا ہوا ہے، ایف آئی آر کی لائن میں، کہ علیمہ خان اور میڈیا نے عمران خان صاحب کے پروٹیسٹ کی بات کی، اور اس پروٹیسٹ کی بات کرنے پہ علیمہ خان اس اینٹی ٹیررزم کورٹ کے سامنے ٹرائل کا سامنا کر رہی ہیں۔ پوری ایف آئی آر میں سوائے 24 نومبر کی جو پروٹیسٹ کال تھی، جو رول آف لاء کے لیے تھی، جو 26 امینڈمنٹ کے ذریعے آئین اور عدلیہ پہ حملہ کیا گیا، اس کے متعلق تھی، جو سٹولن مینڈیٹ کے متعلق تھی، جو آئین کی بالادستی کے متعلق کال تھی، اس کال کا جی کہتے ہیں کہ انہوں نے آ کے ذکر کیا علیمہ خان صاحبہ نے، اور اس کال کی بنیاد پہ ایک ایف آئی آر درج کر دی گئی۔ کوشچن یہ ہے کہ اس بات کی، جس بات کی بنیاد پہ علیمہ خان اس کیس کا سامنا کر رہی ہیں، کیا اس بات کا تذکرہ کسی دیگر پولیٹیشین نے، کسی منسٹر نے، کسی جرنلسٹ نے، کسی میڈیا چینل نے کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ کیا۔ 22 نومبر کا الزام ہے، 22 نومبر 2024 کا الزام ہے کہ علیمہ خان نے ایک بات کر دی، پروٹیسٹ کال کی آ کے
प्रेस टॉक में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इल्जाम है जिसको हम रद्द करते हैं, हम नहीं मानते कि 22 नवंबर को हमने कोई बात की या हमारी कोई प्रेस टॉक हुई, ये इस्तगासा ने साबित करना है वो अदालत। लेकिन ये जो लोग, जिन लोगों की तलबी की मैंने बात की है, इन लोगों ने हलीमा खान साहबा से कबल ये बात की है, प्रोटेस्ट कॉल की, उन्होंने अपने बयानात में बात, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात को तलब करना, क्या ये गैर ज़रूरी था? बहुत ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, अभी जो सिस्टम चल रहा है, वज़ीर दाखिला ने बात की है 24 नवंबर के प्रोटेस्ट की कॉल की, तो क्या वज़ीर दाखिला पे एंटी टेररिज्म की FIR हुई? क्या वो अता तारिड़ जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उसने जब 24 नवंबर के प्रोटेस्ट की बात की तो क्या उस पर FIR हुई? FIR ये मैं आपको अर्जी करना चाह रहा हूँ कि इल्ज़ाम क्या है। नौरीन न्याज़ी साहबा को सुनाइएगा जी। शुरू हो गया ना, सब जगह लोग इस वक्त अपने अपने हक के लिए खड़े हैं। जब इमरान खान निकलेंगे, ये सारे इंशाअल्लाह ताला हर बंदा अपनी सज़ा और अपना हिसाब देगा। इनके इतने महीनों से आज तक कभी किसी को इन्होंने कैद तन्हाई में नहीं डाला। ये जितने जो इस वक्त बैठे हैं ये असेंबली के अंदर, इन्होंने आज तक कभी जेल नहीं काटी। ये जेल एक दिन रहते थे, दूसरे दिन या किसी अस्पताल में होते थे या किसी घर के अंदर होते थे या किसी दावत पे होते थे। और जब नवाज शरीफ अडयाला में थे, अंदर से हमें जो अडयाला की इंतजामिया बताती थी कि 100 बंदा उनको रोज का मिलता था। पार्टी के लोग आते थे, दोस्त आते थे, बैठ के महफिलें लगती थी, खाने पकते थे, खाए जाते थे। तो ये इनके लिए था अडयाला। और इमरान खान के साथ जो कर रहे हैं, ये शायद इजराइल के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, लेकिन इसका ये सारे हिसाब देंगे और हम हिसाब लेंगे, इनके ऊपर मुकदमे करेंगे और बनाएंगे। और जब 26 और 27वीं तरमीम, तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। नौरीन न्याज़ी साहबा ने कहा। अब जरा इकबाल अफरीदी साहब क्या कहते हैं जी, जरा वो भी सुनवा दीजिएगा। अडयाला जेल के बाहर इकबाल अफरीदी। जिस जुल्म में ये लोग निकलते कि हर किसी के पीछे दर्जनों दर्जनों केसें होती हैं, और आधी पार्टियां हमारे जेल में पड़ी है। तकरीबन हाफ पे जो है ना अभी इधर छुपे हुए हैं, अंडरग्राउंड है, और आधी जो है ना वो जेल में पड़ी है। लिहाजा इस पछताइयत के इस दौर में जो जुल्म और जबर है, ये लोगों का निकलना, ये मैं इनको दाद देता हूँ, उनकी जुर्रत को दाद देता हूँ। और आप लोग, आप जैसे बुज़दिल लोग जो यहाँ पे बैठ के सिर्फ बातें करते हैं, अगर हमारी हुकूमत होती और हो तो हम आपको इस तरह नहीं रोकेंगे, हम कानून को नहीं तोड़ेंगे, हम आईन को नहीं तोड़ेंगे। लिहाजा आप सुन ले कि आज 10,000 से ज्यादा लोग आए हैं, आप आ जाइए यहाँ पे और खुद ही गिन लें। लिहाजा आपने वादा किया था कि मैं इधर आऊंगा, आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो 10,000 लोग पूरे हो गए। तो राना सनाउल्लाह साहब ने चैलेंज किया था जी कि आप वहाँ पे 10,000 ले आएँ तो मैं भी आऊँगा और हम फिर बात कर लेंगे इमरान खान की मुलाकात के लिए, इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये बात नहीं हो रही कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, बल्कि वो कहते हैं कि इमरान खान को सिर्फ हॉस्पिटल शिफ्ट करें शिफा इंटरनेशनल में, उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनको शामिल किया जाए उनके इलाज में, उनके फैमिली मेम्बर्स को शामिल किया जाए उनके इलाज में, मेडिकल रिपोर्ट्स शेयर की जाएँ, लेकिन अभी तक कुछ भी शेयर नहीं किया जा रहा। आगे बढ़ते हैं। अगली सूरत हाल नेक्स्ट क्या है जी, वो है आज DGISPR जी DGISPR ने आज ब्रीफिंग दी है, बंद कमरे में ब्रीफिंग दी है। और क्या फरमाते हैं, सबसे पहले तो ये कि आज कैमरे नहीं थे और कैमरों के बगैर ये आप फाइल फुटेज देख रहे हैं। कल कहा गया था कि DGISPR तर्जुमान आला जो हैं वो ब्रीफ करेंगे मीडिया के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो आज तैयारी शारी करके गए थे, लेकिन उसके बाद कहा गया कि ये बैकग्राउंड ब्रीफिंग होगी और कैमरा नहीं होगा, लिहाजा इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। वैसे भी पहले भी पाकिस्तान टेलीविज़न रिकॉर्ड करता था और उसके बाद वो नशर करता था, लेकिन आज वो भी काम नहीं किया गया। तो जो ब्रीफिंग दी गई, एक तो है कि बंद कमरे में क्यों दी गई, कैमरे के सामने क्यों नहीं आए, हालांकि बहुत बड़ा इवेंट था, ईरान अमेरिका मुआहिदा करवाया और पता चला कि वो मुआहिदा लिखा भी खुद ही है, और ये सारे का सारा ये क्लेम किया जा रहा है। और एक तरफ ये और दूसरा ये कि नोबल इनाम का कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल के लिए नोबल इनाम का ऐलान किया जाए, फैसल वाडा ने कहा है और बाकी लोगों ने कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो खुद अनाउंस करे और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को कि उन्होंने एक बहुत बड़ा
कारनामा सर अंजाम दिया है, तो उनकी वजह से ये जंग रुकी है और फिर ये जंग बंदी हुई और अब मुस्तकिल जंग ख़त्म हो रही है। और इसके साथ-साथ सिर्फ जंग ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि मुस्तकिल जंग का ख़ात्मा और मुआहिदा हो रहा है ईरान अमेरिका के दरमियान, तो लिहाज़ा नोबेल इनाम दिया जाए। तो जो DDISPR ने आज बंद कमरे में गुफ्तगू की, उसका एक वजह ये भी थी कि जब भी वो कैमरे के सामने आके गुफ्तगू करते हैं, तो वो पकड़े जाते हैं और उसके बाद फिर उनकी जो सवालों के जवाब हैं, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और इकोनॉमी की सिचुएशन है, हुकूमत की कारकर्दगी है, उसका उनका जवाब नहीं होता। तो वो कहते हैं जी कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मुआहिदे को उन्होंने कहा कि खुशाइंद है और ईरान अमेरिका जंग बंदी पाकिस्तान ने बगैर लड़े, उन्होंने कहा जी जंग जीत ली है, ईरान अमेरिका जंग बंदी पाकिस्तान ने बगैर लड़े ये जंग जीत ली। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ये जंग जो है वो बगैर लड़े जीत ली है। और ये DDISPR ने कहा है और मैं नहीं कह रहा। और इसके साथ-साथ उन्होंने कहा जी कि अमेरिका ईरान तनाज़ा इंतहाई पेचीदा और बरसों पुराना था। पाकिस्तान ने बतौर सालिस इंतहाई बेहतरीन किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल ने बतौर सालिस अपना किरदार इंतहाई ज़िम्मेदारी से अदा किया और हमेशा हेडलाइन डिप्लोमेसी पे जो है हम यकीन नहीं रखते, यानी कि पीछे बैठ के हमने बहुत सारा काम किया है और ईरान अमेरिका तनाज़ा और जंग बंदी से मुताल्लिक किसी भी किस्म की क़यास आराई मसाइल का बायस बन सकती है। यानी उन्होंने साथ ही हुक्म जारी किया है कि इस सिलसिले में अपनी तरफ से कोई गुफ्तगू ना की जाए और सिर्फ वही गुफ्तगू की जाए जो हम आपको बताएं। और इसके लिए टेलीविज़न चैनल्स को जो दिफाई माहिरीन हैं, तज्ज़िया निगार हैं, तबसरा निगार, उसकी भी एक लिस्ट दी गई है कि आपने सिर्फ इनको बुलाना है, किसी और को नहीं बुलाना। और फिर उन्होंने कहा कि 19 जून को जेनेवा में मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत होंगे। तो ईरान का कहना है कि ये मुआहदा नहीं है, ये MOU है, मफ़ाहमत की याददाश्त है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अभी मुआहदे में वक्त लगेगा, हम देखेंगे कि अमेरिका हमारे साथ किए गए वादे पूरे करता है या नहीं। और कल अमेरिकी नायब सदर ने कहा कि हम ईरान से बराह रास्त जुड़ चुके हैं, बराह रास्त हमारा ताल्लुक हो चुका है कायम और अब हम किसी हमें सालिस की कोई ज़रूरत नहीं है और हम जायज़ा लेंगे कि हमारे कौन से पैगामात किस हद तक उन तक दुरुस्त पहुँचे और किस हद तक उसमें मिलावट या झूठ शामिल किया गया और जो हम तक पैगाम पहुँचे वो किस हद तक सही थे और उसमें किस हद तक मिलावट थी या झूठ था या फेक थे। तो अमेरिकी नायब सदर ये बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा की आपसी लड़ाई को भी रोका और हमने सऊदी अरब, कतर, तुर्की और मिस्र ने अहम तरीन किरदार अदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी मुस्बत किरदार अदा किया और इसके साथ-साथ उन्होंने इस मुआहिदे को कहा कि जी खुश आइंद है, मुतहर्रिक सालिस का किरदार हमने अदा किया। और इसके साथ-साथ जी आगे जाके वो ये भी कहते हैं कि जो हमारे सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से ये खबरें जितनी भी आज टीवी चैनल पे चल रही हैं, वो बुनियादी तौर पे DDISPR हैं। जंग के बगैर जीत जाना ही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी थी और भारत बगैर किसी बगैर किसी हाँ जी, भारत बगैर किसी ग्रेटनेस के वो कहते हैं जी ग्रेट है और ये बात भी सामने आई है और भारत को भी उन्होंने कहा। लेकिन साथ-साथ जो सबसे अफ़सोसनाक वाक़या है, वो है कश्मीर के बारे में। उन्होंने जो गुफ्तगू की है और ये कहा है कि मसला कश्मीर तक़सीम का नामुकम्मल एजेंडा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि गैर मुल्की अनासिर आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे आके हम कहेंगे ये बिल्कुल गलत है। ये वही हरकत कर रहे हैं जो उन्होंने बलूचिस्तान में की, अपनी आवाम को दुश्मन समझ के मारा। वही हरकत इन्होंने पंजाब में की, वही हरकत इन्होंने इस्लामाबाद में की, 9 नवंबर को की, मुरीदके में की, 26 नवंबर को की, आज़ाद कश्मीर में की, गिलगित बल्तिस्तान में की, स्कर्दू में की। ये सारी हरकतें और अब कश्मीर के साथ भी वही हरकत कर रहे हैं और जिस पे चाहते हैं ठप्पा लगा देते हैं गैर मुल्की का। तो ये गैर मुल्की नहीं है जनाब, ये सारे कश्मीरी भाई हैं और पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाने वाले हैं और जो पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा लगा रहा है, आप उसी को दहशतगर्द कह रहे हैं और अपने अलावा आप किसी को मुहिब वतन समझते नहीं हैं।